All right, my friends, once again, I welcome all of you. Good afternoon to you, good morning, and good evening from wherever you're watching us. And whether you are joining us from your home, your work, or just sneaking in a quiet moment during lunch, I'm truly grateful to you, whoever is present here. So, friends, it's just after 1 p.m., and I know that how busy your afternoon can be. So, take a moment, just breathe, and give yourself full permission to be right here राइट नाउ क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है एंड इट इज जस्ट शिफ्ट इट विल बीइंग अ shift something deep within you. So make sure because आज का सेशन जो है it's really close to my heart and I'm sure that you know the topic how counseling helps you navigate emotional disturbances. And I couldn't be more thrilled to have Dr. Arpana Soni with us, a gifted homeopath, a family counselor who has been transforming lives with her compassionate, grounded, and powerful approach to emotional wellness. So thank you so much, Dr. Arpana, first of all for being here and accepting the proposal and coming here. थैंक्स टू यू प्रशांत जी, आपके ने इतने वंडरफुल वर्ड्स के लिए और आपने यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच Thanks. एंड आई एम फीलिंग So to ग्रेट। everyone who are watching us right now, stay with us. You might hear something today. वो कहीं ना कहीं you would feel that it puts that puts words to what you've been feeling for a long time and maybe even find your next step forward. So इससे पहले कि मैं स्टेज डॉक्टर अर्पणा को हैंड ओवर करूं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. So she is a dedicated healer who bridges homeopathy and emotional therapy to treat not just diseases but the deep rooted emotional stories behind them. She is also a president of Homeopathic Doctors Association Delhi. She is an assistant editor and a founder of Ask Homeopathy and Sony Homeo Clinic. She is a health consultant of Akhil Bharatiya Marwadi Mahila Sansthan. She is also a life member of DHMA. And with a BHMS and PG diploma in counseling and family therapy, she guides individuals, couples, and families, using different in their different issues like chronic illness, emotional struggles, relationship issues, and behavior concerns. And so that's it. And I'll just hand over the stage to her. She will be talking to you for next 30 to 35 minutes, and then we'll have a Q&A, and you can ask your questions. So, Arpana ji, Dr. Arpana, over to you, and thank you. थैंक यू प्रशांत। हेलो एवरीवन। प्रशांत जी ने मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको दे ही दिया गया है, तो हम डायरेक्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है और कैसे काउंसलिंग आपका हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर इमोशंस। इमोशंस आर द इनर लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड, इनविजिबल currents that shape how we think, behave, and connect. They are like the weather of our soul, sometimes calm, sometimes stormy, but always meaningful. Emotions are biological responses to internal or external experiences, signals to protect, connect, or express ourselves, the bridge between thoughts and actions. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इमोशंस कि इमोशंस कितने टाइप के होते हैं. देर आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मैनी मोर. लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव इमोशंस. हैप्पीनेस और जॉय, एक्साइटमेंट, लव, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड, होप, रिलीफ, दीज आर पॉजिटिव इमोशंस जो हमें बताते हैं कि हम अंदर से कैसा खुश फील कर रहे हैं और हम कैसे एक फॉरगिवनेस की तरफ जाते हैं और कैसे हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं. देन कम्स नेगेटिव इमोशंस. दे आर सैडनेस, फियर, डर, एंगर, गुस्सा, जेलसी, किसी से भी ईर्ष्या, गिल्ट, क्षोभ, शेम, शर्म आना, लोनलीनेस, अकेलापन फील करना. देन ओवरवेलमिंग इमोशंस, यानी कि वो इमोशंस जो हम पर बहुत हावी हो जाते हैं.
दैट आर एंजाइटी और वरी, बेचैनी या चिंता। पैनिक, एकदम से ऐसा डर आना जिससे आप अपने ऊपर काबू खो देते हैं। कंफ्यूजन, ओवरवेल्म यानी कि हावी होना। कुछ रिएक्टिव इमोशंस भी होते हैं, लाइक फ्रस्ट्रेशन, चिढ़, खीज, इम्पेशंस, धैर्य ना होना, डिस्गस्ट, घृणा करना, इरिटेशन, चिढ़ मचना। देन रेगुलेटिंग इमोशंस होते हैं, लाइक कामनेस, कंटेंटमेंट, कंपैशन, फॉरगिवनेस। कुछ हमारे माइंड में कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड इमोशंस भी होते हैं, लाइक बिटर स्वीटनेस, नोस्टैल्जिया, लव हेट रिलेशनशिप होते हैं। होप एंड फियर, आशा और डर दोनों एक साथ चलते हैं। एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी, किसी चीज को करने के लिए एक्साइटमेंट तो है, लेकिन उसके साथ एंजाइटी भी होती है। मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। एक्साइटमेंट, आप एक नई जगह पे जा रहे हैं वेकेशन के लिए, जो आपने रील्स में देखा या आपके दोस्तों ने आपको बताया। मान लीजिए वो एक पहाड़ी इलाका है, पर आपको वहां पर जाकर जो है माउंटेन सिकनेस होने लग जाती है, तो वो आपको बेचैन होने करने लग जाएगा जाने से पहले ही। तो ये हो गया एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी। देन होप एंड फियर। होप यानी कि आशा, आप कुछ नया काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आशा चल रही है उस चीज को लेकर कि हाँ कि ये काम कैसा होगा, लेकिन फिर एक डर आ जाता है सक्सेस या फेलियर का। तो ये हो गया होप एंड फियर। लव एंड हेट रिलेशनशिप, ये बेस्ट फ्रेंड्स में हो सकता है कि प्यार तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जिससे आप एक पर्सन से थोड़ा सा हेट भी आपके दिमाग में आने लग जाता है, जो जेलसी के बाद काम करता है। नोस्टैल्जिया, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा याद करना। कई बार बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो कहते हैं कि हाँ कि होम सिकनेस हो रही है हमें, या कहीं जाकर आप अपनी पुरानी यादों में खो जाते हो, या कोई ऐसा लव्ड वन आपका चला गया है, आप उसकी पसंद का कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप एक नोस्टैल्जिक फीलिंग में चले जाते हैं। बिटर स्वीटनेस, ये ज्यादातर इमोशन आता है जहाँ पर कपल्स का रिलेशनशिप होता है, या आप लगाइए कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशन हो गया, कि जहाँ पर हल्की फुल्की कड़वाहट और मीठी यादें दोनों साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमोशनल वेलबींग क्या है। आज का जो टाइम है, दुनिया इतनी तेजी से भागती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा शोर है, और कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमने इमोशंस को कैसे डील करना है, और इमोशंस हम कैसे डील कर सकते हैं, ये आपको मैं यहाँ बताती हूँ। इन अ वर्ल्ड दैट्स कॉन्स्टेंटली रशिंग, buzzing and overflowing with noise, emotional well-being means having the strength to stay calm inside, even when everything outside feels out of control. It's the ability to feel your feelings without getting lost in them, to bounce back from stress without breaking down, and to stay connected to hope, purpose, and peace, even in the middle of storms. यानी कि इमोशंस वही हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको ये पता है कि आप कैसे उन इमोशंस से डील कर सकते हो, चाहे वो सक्सेस है या वो फेलियर है, लेकिन आपको आपका एक स्ट्रेंथ अंदर से मालूम होना चाहिए। इट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ, resilient and balanced. You can pause before reacting, speak kindly to yourself, set healthy boundaries, and still find joy in little things. आप अपने काम के प्रेशर में हैं, या आपको कोई परेशानी चल रही है घर की, बच्चों की, कैसी भी, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने उन परेशानियों के साथ या किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एकदम से रिएक्शन दे रहे हैं या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, या आप अपने आप के साथ कितना जेंटल हैं, और आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं कि इसके बाद मैं किसी की कुछ भी परेशानी जो है अपने ऊपर नहीं लेने वाला हूँ, और छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां मिलती हैं। It's about making space for your emotions instead of stuffing them down or letting them explode. It's about responding with wisdom instead of reacting in fear. It's about protecting your peace like it's your superpower. It's about because in a chaotic world, your emotional well being is not a luxury. It's your anchor, it's your armor, एंड योर इनर लाइट। जो इमोशनल वेलबींग है, ये एक उस एंकर की तरह है जो एक नाव को पानी में रोक सकता है, एक आपका जो है सुरक्षा कवच है, और आपके अंदर की लाइट है जो आपको होप और पॉजिटिवनेस देती है।
अब हम बात करते हैं व्हाट आर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आर when your inner compass misfires, when emotions don't just visit, they take over, clouding your thoughts, hijacking behavior and disrupting everyday life. इमोशंस वहाँ डिस्टर्ब होते हैं जहाँ आप उनसे डील नहीं कर पाते हैं और आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लग जाते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न बदल गया है और आपका एवरीडे का रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट फीलिंग सैड, इट्स व्हेन इमोशनल पेन बिकम्स क्रोनिक, अनमैनेजेबल एंड अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू लिव फुली. उदासी एक इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वो एक आपकी लाइफ का एक छोटा सा फेज भी हो सकता है या एक दिन का हो सकता है. लेकिन अगर ये आपका इमोशनल पेन आपके साथ बहुत टाइम तक रहे और आपको समझ में ही नहीं आए कि आपको इसको मैनेज कैसे करना है और आपकी लाइफ जो है फुली चेंज हो जाती है, देन ये एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है. थिंक ऑफ इट लाइक फीलिंग स्टक इन फियर, रेस, गिल्ट और सोरो, एन इमोशनल अलार्म दैट डजंट शट ऑफ. आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. एंड द सोल्स क्राई दैट गेट साइलेंस्ड और मिसअंडरस्टूड. Why do emotional disturbances happen? They may be biological, psychological, social and environmental or life events. Biological अगर हम डिस्टर्बेंस की बात करें तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक मेनार्की, देन प्रेगनेंसी, देन मेनोपॉज जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं. देन जेनेटिक वल्नरेबिलिटी अगर उनकी फैमिलीज में ये चलता आ रहा है. न्यूरोकेमिकल डिसफंक्शन दैट इज ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शंस. देन साइकोलॉजिकल कोई चाइल्डहुड ट्रोमा, स्प्रेस्ड इमोशंस, लो सेल्फ एस्टीम और परफेक्शनिज्म. थर्ड, सोशल एंड एनवायरमेंटल दैट आर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बुलिंग और आइसोलेशन, academic और वर्क स्ट्रेस, सोशल मीडिया ओवर एक्सपोजर और लाइफ इवेंट्स, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक, अब्यूज, लॉस ऑफ जॉब और लॉन्ग इलनेस. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की. फर्स्ट वन इज मूड रिलेटेड जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, अटिपिकल मूड स्विंग्स. और एंजाइटी स्पेक्ट्रम में आता है जनरल एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फोबियास, ओसीडी. इम्पल्स एंड एंगर कंट्रोल में अग्रेशन और एकदम सडन आउटबर्स्ट, इरिटेबिलिटी. इमोशनल डिसरेगुलेशन, इमोशनल मेल्टडाउन्स, डिफिकल्टी कोपिंग विद स्ट्रेस. और उसके बाद आता है साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्सेज यानी कि आपको फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं. दैट्स आर बॉडी एक्स विद नो मेडिकल रीजन, स्लीप एंड एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस. देन साइन एंड सिम्टम्स टू वॉच फॉर. अब इसमें हम अर्ली साइंस की भी बात करेंगे, सटल सिग्नल्स की भी बात करेंगे और कुछ अलार्मिंग साइंस की भी बात करेंगे. अर्ली साइंस जो है वो है सडन मूड चेंजेस, विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली, decreased performance that may be of school and for work, oversleeping or insomnia, unusual fears और crying spells. ये अर्ली साइंस तकरीबन जो है ओवरलुक हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आज मूड खराब है, कल ठीक हो जाएगा, आज कहीं जाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, कल चला जाएगा. तो इस टाइप से ये अर्ली साइंस हमेशा ओवरलुक हो जाते हैं, जबकि इन्हीं पर अगर हम पहले ध्यान दें तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को और डिस्टर्बेंसेस को वहीं रोक सकते हैं. देन हम बात करते हैं सटल सिग्नल्स की. इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी, नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी कि अपने बारे में गलत बोलना शुरू हो जाना या गलत गलत सोच आने लग जाना कि मैं ही गलत हूँ, मेरी ही सारी गलती है. देन रेस्टलेसनेस और पेसिंग, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहना. अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, क्लिंगीनेस इन चिल्ड्रन और टीन्स. अब बात करते हैं हम अलार्मिंग साइंस की. These need immediate attention and possibly urgent counseling or psychiatric help. That is talking about death or suicide, self-harm और substance abuse. Substance abuse किसी ना किसी तरह की नशे की लत में आ जाना. Hearing voices और delusions. Extreme mood shifts. बहुत जल्दी जल्दी मूड शिफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अगले ही सेकेंड में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे या बिल्कुल चुप हो जाएंगे. टोटल विथड्रॉल ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, आप बुलाते हो लेकिन वो बोलते नहीं हैं, रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं हर चीज़ के लिए
उनको मतलब कई पेशेंट्स में तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उनको ठंडे गर्म का भी एहसास होना बंद हो जाता है। दे वेंट टोटली नम, लॉस ऑफ रियलिटी और सिवियर पैनिक एपिसोड्स। वो रियलिटी में और में झूठ में फर्क नहीं कर पाते हैं और उनके पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की। फर्स्ट इज डिनायल और कंफ्यूजल फेज, कि एक डिनायल मोड में रहता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं ठीक हूं, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत है, दैट इज समथिंग फील्स ऑफ बट आई कांट एक्सप्लेन इट। देन डिसरप्शन फेज, ट्रबल फंक्शनिंग, स्लीपिंग और कोपिंग। देन क्राइसिस फेज, ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस, पैनिक और एग्रेशन। इस क्राइसिस फेज में आकर पता चलता है कि हाँ, मुझे कुछ हुआ है, कुछ इमोशंस हैं जिनको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। देन एक इनसाइट फेज आता है कि रियलाइजेशन होता है कि आई नीड हेल्प एंड दिस इज द मोस्ट करेजियस स्टेप यू टेक फॉर योर सेल्फ। फिफ्थ इज हीलिंग फेज थ्रू काउंसलिंग, स्पोर्ट एंड अवेयरनेस। एक हीलिंग फेज स्टार्ट होता है जब आप काउंसलिंग करवाते हैं, आपको सपोर्ट मिलना शुरू होता है और अवेयरनेस आपके दिमाग में आती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस क्या है। अवेयरनेस यानी किसी भी प्रॉब्लम का जो है आपको पता होना कि ये क्या है, क्यों हो रही है और इसका क्या सोल्यूशन मैं देख सकता हूँ। Awareness of emotional disturbances. Not every storm is loud. Some emotional disturbances arrive quietly, as a lump in the throat, a restless mind at 2 a.m. ये कभी ना कभी हर किसी ने फेस किया होता है, बट अगर ये डेली आपके रूटीन में होता रहे तो ये एक डिस्टरबेंस है, इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। ये लंप इन द थ्रोट जब आपके साथ बहुत खुशी हुई या एकदम से आप इमोशनल हो गए तो ये आ सकता है। कभी आपके दिमाग में अगर एग्जाम्स को लेके कोई स्ट्रेस चल रहा है तो माइट भी आप रात को अराउंड 2-3 AM जाग सकते हैं, आपको एक रेस्टलेसनेस हो सकती है। और अ स्माइल दैट हाइड्स एक्सॉशन, सॉरी, एक स्माइल जिसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, क्योंकि वो स्माइल फेक होती है। दे डोंट ऑलवेज स्क्रीम फॉर हेल्प, दे विस्पर, आई एम टायर्ड बट आई डोंट नो वाई। मुझे थकावट लग रही है पर मुझे नहीं पता कि क्यों है। ना तो मैंने इतना काम किया है, मैं हर वक्त थका थका महसूस करता हूँ, बट टेस्ट मेरे नॉर्मल आ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। आई एम सराउंडेड येट आई फील अलोन, मैं लोगों के बीच में रहकर भी अकेलापन फील करता हूँ। आई एम होल्डिंग इट टुगेदर बेयरली, मैं इन सब चीज़ों को अब ज़्यादा और होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अवेयरनेस इज द टर्निंग पॉइंट, इट्स द मोमेंट यू पॉज एंड आस्क, इज दिस जस्ट स्ट्रेस और इज माई सोल आस्किंग फॉर केयर। When we notice repeated negative thoughts, emotional overreactions, disconnection from others, sleep, appetite, or energy changes, then we give ourselves a gift, the chance to heal with understanding, not judgment. Awareness does not fix everything, बट इट स्टार्ट्स एवरीथिंग। अवेयरनेस से आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हो, बट ये आपका पहला स्टेप होता है खुद को ठीक करने का, सेल्फ केयर का। देन sport. What is sport in emotional disturbances? Sport during emotional disturbances isn't about giving advice. It's about being present, being understanding, and being consistent. When someone is emotionally overwhelmed, they don't always need solutions. आप एक लाइन बहुत बार रेडियो पर सुनते होंगे कि इस सुनाने वाली दुनिया में सुनने वाले की ज़रूरत है। एडवाइस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बट सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। तो एक ऐसे पर्सन का सपोर्ट चाहिए होता है, वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, जो आपको बिना जज किए सुने, आपको समझाए नहीं, कोई एडवाइस नहीं दे, बस सुने आपके इमोशंस को। They need someone who listens without judgment, who validates without questioning, and who stays even in silence. Personal support can be a friend who listens without trying to fix,
a family member who shows patience and empathy, a mentor or partner who creates emotional safety, a consistent daily routine, self care or spiritual practice. अभी इस एक मूवी आई है सैयारा के नाम से, उसके बारे में हम सबने बहुत सुना होगा। तो उसमें जो वो उसकी एक्ट्रेस है, उनको अल्जाइमर्स होता है। तो उनका जब ट्रीटमेंट डॉक्टर बताता है तो वो उनको एक रूटीन सेट करने को बोलता है कि इनका खाना पीना सोना जो है वो एक डेली रूटीन में होना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को स्पोर्ट की तरह ले। तो वही ये सपोर्ट सिस्टम आपका घर से सबसे पहले स्टार्ट होता है। देन comes professional support, which includes counseling and therapy, safe spaces to explore feeling, triggers and healing tools. काउंसलर और थेरेपिस्ट आपको एडवाइस नहीं देता है, आपके साथ मिलके वो आपके हीलिंग प्रोसेस में आता है। आपको एक ऐसा सेफ स्पेस देता है जहां आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां आप ट्रिगर्स को समझ सकते हैं कि क्या बातें हैं या क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, या आपके साथ मिलकर उन चीज़ों को दूर करने की ट्राई करते हैं। और कुछ छोटे छोटे हीलिंग टूल्स लगा लीजिए या टिप्स लगा लीजिए, हम आपको देते हैं। देन मेडिकल और होम्योपैथिक इंटरवेंशन। आई एम ब्लेस्ड कि मैं होम्योपैथ हूँ। तो होम्योपैथी में हम लोग बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स को लेके भी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। तो वहाँ पर भी होम्योपैथी हमारी बहुत हेल्प करती है कि हम पेशेंट को ओपन अप कर पाते हैं। कई बार एक मेडिसिन से ही जब वो 3 दिन बाद पेशेंट्स आता है तो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का पेशेंट होता है, जो बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन आके वो अपनी सारी बातें बताता है। तो यहाँ आई सैल्यूट टू होम्योपैथी। और इस होम्योपैथी ने मेरी ड्यूरिंग काउंसलिंग पिछले 28 ईयर्स से बहुत हेल्प करी है। देन क्राइसिस सपोर्ट फॉर मोमेंट्स ऑफ एक्यूट इमोशनल डिस्ट्रेस और ट्रोमा। कई बार क्राइसिस सपोर्ट आता है कि एकदम से लाइक सडन पैनिक अटैक हो गया, तो उसमें भी हम उनको छोटे छोटे टिप्स बताते हैं कि आप कैसे खुद को शांत कर सकते हो। इवन हम फैमिली को भी बताते हैं। और कुछ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कि अगर आप ये लेंगे तो आपका जो पैनिक अटैक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्पोर्ट मीन्स नॉट ट्राइंग टू इरेज द पेन बट जेंटली helping someone carry it until they can stand again. Now, what is counseling and how it helps you? Counseling is not about giving advice, it's a structured, empathetic, and empowering process where individuals explore, understand, and transform their inner emotional world. Confidential and safe space to express without judgment, encourages clarity, self reflection, and healing, promotes resilience, positive change, and emotional freedom. हम जज नहीं करते हैं, हम आपको एक फ्री स्पेस देते हैं जहां आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए, जैसा आप खुद को समझ पा रहे हैं, जैसे आप अपने मन में बात करते हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है हमारी और क्लाइंट की, और हम उनको इनकरेज करते हैं कि जिस टाइप का जैसा भी उनका कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसी टाइप से पेशेंट को डील किया जाता है। काउंसलिंग इज अ ब्रिज बिटवीन इमोशनल chaos एंड इनर क्लैरिटी। Then, why is counseling necessary? To address emotional and mental health needs, treats a range of disturbances like stress, anxiety, trauma, and burnout. Early intervention prevents escalation, tackles issue before they become chronic. Personal growth and emotional intelligence enhances self-understanding and development. It breaks stigma, normalizes mental health support, and self-care culture. Not all wounds are visible, but counseling helps heal the ones the eyes can't see. हम लोग किसी के इमोशंस को देख नहीं सकते हैं, किसी को देख के पता नहीं चलेगा कि वो बीमार है या नहीं है, या उसके अंदर कुछ ऐसा स्टॉर्म चल रहा है। इसको मैं कई बार तो कई पेशेंट से चक्रवात की तरह हमें नजर आता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी अपने इमोशंस में ही शिफ्ट हो जाते हैं। Then, how counseling helps navigate emotional disturbances. Emotional support, a safe, non-judgmental space to release emotions and feel heard. आप जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो एक इमोशनल सपोर्ट हम आपको देते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ जज नहीं किया जा रहा है, और पेशेंट पीसफुली और
कामनेस के साथ हमें अपने इमोशंस को धीरे धीरे एक्सप्रेस करने लग जाता है। अनकवर रूट कॉज, किसी भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई रूट ज़रूर होता है। तो सबसे पहले हम उसके रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ उसके ट्रॉमास को लेके बात होती है कि क्या ट्रिगर क्या कर रहा है, कोई ऐसा स्ट्रेस है या अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट है, या पास्ट में कुछ ऐसा उसके दिमाग में आ गया जो वो आज तक निकल नहीं पाया है। Develop coping strategies, teaches tools to manage anxiety, depression, anger and grief. कुछ ग्रीफ्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चले जाते हैं, लाइक किसी अगर लव्ड वन को खोना, चाहे वो आपसे दूर चला गया है, चाहे वो उसकी डेथ हो गई है, बट कई लोगों पर ये बहुत ही एक्सट्रीम इफेक्ट डालता है। तो वहाँ पर काउंसलिंग बहुत हेल्प करता है। एम्पावर्स यू, बिल्ड्स रेजिलेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग यू, इट्स अबाउट फाइंडिंग यू। हम आप में से आप ही को ढूंढते हैं। And what it provides a safe and supportive environment, total confidentiality, judgment free zone, expression without fear, criticism, or rejection. Healing begins when a person feels heard, not hurried. जल्दबाजी नहीं, आराम से बैठकर जब हम किसी को सुनते हैं तो वो एक अपनापन जो उसको फील होता है, वो बहुत एम्पैथेटिक जो फील करता है, वो उसको हील करने में मदद करता है। देन बी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, लेबलिंग एंड प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स इमोशंस। जब हम किसी को जानते हैं तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। लाइक अगर फिजिकली भी कोई इलनेस होती है तो हमें उनके सिम्टम्स, साइंस सब पता होते हैं। हमें उनकी ये पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला, प्रोग्रेशन क्या है डिजीज का। उसी तरीके से जब हम इमोशंस को पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हमने आगे कैसे जो है अपना ट्रीटमेंट प्लान करना है। फाइंडिंग द वाई बिहाइंड इनर क्योर्स, बिल्डिंग इमोशनल वोकेबलरी एंड इंसाइट, गाइडेड रिफ्लेक्शन, नरेटिव थेरेपी एंड टॉक वर्क, यानी व्हेन यू नेम इट यू कैन टेम इट। देन developing coping skills and emotional tools, strategies to manage stress and emotional overwhelm, CBT टूल्स यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, ब्रीदिंग वर्क, ग्राउंडिंग टेक्निक्स, builds emotional regulation and response flexibility. You can't control them, but you can learn to serve them. D. Empowering change and personal growth. Challenges negative patterns and limiting beliefs. Encourages goal setting, motivation, and self leadership. Boosts self image and emotional independence. कई बार कुछ पेशेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये सब हम काउंसलिंग से उनको उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंस बता पाते हैं। अब काउंसलिंग के बाद रिजल्ट्स क्या रहते हैं? बेटर कम्युनिकेशन, अ स्ट्रॉन्गर सेल्फ इमेज, इमोशनल फ्रीडम, ग्रोथ बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। इट प्रिवेंट्स फ्यूचर मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन। वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो इमोशंस के कारण बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। अर्ली हेल्प इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेलनेस, इमोशनल केयर हैबिट्स, inner strength for future challenges. Counseling doesn't just treat pain, it builds protection against it, enhancing overall emotional wellness, resilience, self love उनको समझ में आता है। बैलेंस, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, अंदर बाहर, अपने काम की जगह पे और घर पर अपने दोस्तों के साथ वो बैलेंस बना पाते हैं। कम्युनिकेशन इज द की, ये उनको समझ में आता है। थेरेपी इजंट अबाउट चेंजिंग यू, इट्स अबाउट बिकमिंग हु यू वर मेंट टू बी। आप क्या होने के लिए हैं। अब टाइप्स ऑफ काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स जो है, हमारी काउंसलिंग के टाइप्स जो है चेंज होते चले जाते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए, क्या काउंसलिंग चाहिए। तो काउंसलिंग बहुत टाइप का होता है, लाइक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जहाँ पर
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, ग्रीफ, ये सब है। देन करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए या कॉलेज जो जाने वाले हैं उनके लिए। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग कोई क्रोनिक इलनेस है या कोई डिसेबिलिटी है उसके लिए, लाइक कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। मैरिज रिलेशनशिप काउंसलर्स फॉर कपल्स, ठीक है, किसी भी टाइप का जो रिलेशनशिप है अगर उसमें कुछ आ रहा है उसको स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हो आप, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे आपस में कनेक्शन रख सकते हो, ठीक है, और रिलेशनशिप्स कैसे अपने और अच्छे कर सकते हो। सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग एंड स्कूल काउंसलिंग। मेथड्स ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं अब। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज सीबीटी। CBT helps people understand how their thoughts affect their feeling and behavior. It teaches how to replace negative thinking patterns with more helpful ones, and it is used for depression, anxiety, phobias, PTSD. PTSD is post traumatic stress disorder. कोरोना के बाद हम लोगों ने इसके पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी थी। पीटीएसडी का मतलब होता है कि जब आपने किसी ट्रोमा के बाद आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो कि आप उससे डील ही नहीं कर पा रहे हो। उस टाइम लोगों में बहुत डिप्रेशन था, डर बहुत था, पैनिक अटैक्स बहुत थे। तब सीबीटी ने बहुत हेल्प करा उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने में। टाइम लगा उस चीज़ में, बिकॉज आसपास आप बहुत कुछ देख रहे थे और सब कुछ नेगेटिव था। न्यूज़ बहुत नेगेटिव जा रही थी, लोग मिलते थे तो वो भी नेगेटिव बातें करते थे। तो यहाँ आपकी हेल्प जो है काउंसलर करता है टू हेल्प क्लाइंट्स थिंक क्लियरली एंड एक्ट पॉजिटिवली इन इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस। Then humanistic therapy. This therapy focuses on the whole person, respecting each person's feeling and experiences. It creates a safe, non-judgmental space to explore emotions, and it is used for relationship issues, personal growth and addiction. पर्सनल ग्रोथ में कई बार क्लाइंट्स को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करना क्या चाह रहे हैं या उनकी रिलेशनशिप में कोई इशू क्यों आ रहा है, जबकि अपनी तरफ से वो सब एफर्ट दे रहे हैं। द थेरेपिस्ट रोल्स हियर इज लिसन्स विद एम्पैथी, हेल्प्स यू फाइंड योर ओन आंसर्स, बिल्ड्स सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। कई बार उनका इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी काउंसलिंग बहुत हेल्प करता है टू हेल्प क्लाइंट्स ग्रो, हील एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। Psychodynamic therapy. This method explores how past experiences and unconscious thoughts affect present behavior. Focus areas are childhood experiences, यानी कि कोई चाइल्डहुड में उसको कोई ट्रॉमा हुआ है जो अभी तक लिंगर ऑन होता जा रहा है और वो एक टोटली चेंज्ड पर्सनैलिटी बन चुका है। इनर कन्फ्लिक्ट्स, पैटर्न्स इन रिलेशनशिप्स, आजकल रिलेशनशिप भी इतने टाइप का है और इतने पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस आते हैं ये उसको डील करेगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, गोल टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर हिडन इमोशनल वुंड्स एंड हील फ्रॉम देम। देन सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। ये हम प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करते, हम यहाँ सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। उनकी डिफरेंट सेटिंग्स, लाइक अगर कोई अकेले अपनी थेरेपी के लिए आना चाहता है, उसकी अकेले की प्रॉब्लम है, या कपल्स किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं इमोशनल, लेकिन उनको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, फैमिली में भी होता है, या एम्प्लॉयज़ में अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये थेरेपी वहाँ सोल्यूशन पे फोकस करती है। फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ्स, सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स, छोटे छोटे गोल्स उनको बताए जाते हैं। बिल्ड्स क्विक एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर चेंज, और इसका गोल रहता है टू मूव फॉरवर्ड क्विकली विद अ क्लियर प्लान एंड कॉन्फिडेंस। Systemic therapy, family and relationship focused. This therapy looks at relationships and how people affect each other. और ये कहाँ हेल्प करता है? फैमिलीज को, कपल्स को और ग्रुप्स, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं और उनको एक साथ मिलके काम करना होता है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सॉल्व रिलेशनशिप इश्यूज, रिस्टोर बैलेंस विद इन द सिस्टम्स लाइक फैमिली और वर्क प्लेस। Then existential therapy.
This therapy help people explore deep life questions like why I am here, what gives my life meaning. फोकस क्या रहता है? फ्रीडम, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि फ्रीडम तो है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम आनी चाहिए। कुछ चॉइस, आप अपनी चॉइस का कुछ करना चाह रहे हैं बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही और रिस्पॉन्सिबल होके करना होगा। लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ, उनकी लाइफ का मीनिंग एंड पर्पस वो उनको समझाया जाता है। गोल, टू हेल्प क्लाइंट्स फाइंड पर्पस, मीनिंग एंड पीस इन देयर life journey. Conclusion: choosing the right approach. Each counseling method serves a different need. CBT for thinking patterns, humanistic for self growth, psychodynamic for past trauma, solution focused for quick results, systemic for relationships, existential for life purpose. A good therapist may combine these methods depending on the client situation. जैसा क्लाइंट हमारे पास आएगा हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। लाइक कई बार क्या होता है, इन्हीं थेरेपीज में से हम कुछ कुछ पॉइंट्स लेके उसको समझाना शुरू करते हैं। समझाना गलत है, यहाँ पर उनके साथ बात करना शुरू करते हैं। कई बार एक सिंपल थेरेपी से काम चलता है, कई बार मिक्स्ड में करना पड़ता है। अब बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स की। क्या क्या इसके मिथ्स हैं और फैक्ट है। सबसे पहला मिथ ये है कि काउंसलिंग इज ओनली फॉर द मेंटली इल। तो इफेक्ट ये है, इट्स नॉट फॉर मेंटली इल पर्सन्स, इट्स फॉर एनीवन फेसिंग इमोशनल, रिलेशनल और लाइफ स्ट्रेस। सीकिंग काउंसलिंग इज अ वीकनेस। नो, सीकिंग काउंसलिंग इज अ करेजियस स्टेप टुवर्ड हीलिंग एंड सेल्फ केयर। अगर आप काउंसलिंग की तरफ जाते हैं तो ये बताता है कि आप अपने आप की वैल्यू करते हैं, आपको खुद से प्यार है, आप हीलिंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं। तो ये एक करेजियस स्टेप है। काउंसलर्स गिव एडवाइस और सॉल्यूशंस। नो, वी डोंट गिव एडवाइसेस। हम आपकी अपनी ही इमोशंस की जो एक लगाइए कि बादलों में दब गया था उसको ही हम क्लियर करते हैं। आपके ही इमोशंस को हम क्लियरिटी देते हैं। आप उनको बांट पाते हैं कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है, मुझे किस पे फोकस करना है और मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। ये हम आपसी बातचीत से तय करते हैं। देन काउंसलिंग टेक्स years. Not every counseling takes years. Many issues are resolved in short term sessions based on needs. काउंसलिंग का जो टाइम है वो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है और पेशेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है 3-4 सेशंस में ही। लेकिन कुछ लोग थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं। जैसे अगर किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है या उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा चल रहा है तो वो जो इतने सालों से है हमें उसको कम टाइम लगेगा। और फिर अगर आप हमारे पास जल्दी आ रहे हैं, स्टार्टिंग में ही आपने अपने आप को पहचान लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया और हमारे पास टाइम से पहुंच रहे हैं तो हमें बहुत कम टाइम लगेगा। ये किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस की तरह है कि आपने अपने सिम्टम्स को पहचाना और आप आ गए। ओनली सीरियस प्रॉब्लम नीड काउंसलिंग नहीं, कई बार छोटे छोटे स्ट्रेस और कंफ्यूजन्स वो भी कुछ पर्सन्स डील नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी काउंसलिंग के लिए ज़रूर आना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़े, आप उसको टाइमली समझ पाएं। Now, key takeaways. Counseling is for everyone, not just those in crisis. काउंसलिंग हर किसी के लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। इट ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इनटू पर्सनल ब्रेक थ्रूस। ये आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को एकदम चेंज करने में हेल्प करता है ताकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो और ज़्यादा निखर कर आए। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप मैटर्स मोर देन नोइंग द राइट टाइम। आपको सिर्फ पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। ये सही है या गलत है ये आपको जल्दी पता चल जाता है। चूज व्हाट फिट्स योर चैलेंज बट ऑलवेज चूज हीलिंग। आप कुछ भी चूज करते हैं खुद को ठीक करने के लिए, लेकिन हमेशा जो है हीलिंग को चूज कीजिए। जस्ट बिकॉज नो वन सीज योर वुंड्स
doesn't mean they don't exist. Let's normalize emotional healing the same way we normalize physical healing. मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ जख्म जो दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए इमोशनल हीलिंग को, जैसे हम फिजिकल हीलिंग की तरफ जाते हैं। बुखार है तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, कोल्ड है तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसको अवॉइड नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमें अपने जितने भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, अगर हम उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, कई बार कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ऐसे होते हैं जब आप अपने घर में बात कर लेते हैं तो बहुत सही हो जाते हैं, आपको वो चीज़ें इतना परेशान नहीं करती हैं। बट अगर आप अपने घर के लोगों के सपोर्ट से या हेल्प से वो नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ काउंसलर के पास जाइए और अपनी इमोशनल हीलिंग भी रखिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अवेयरनेस जर्नी। लेट्स बिल्ड अ वर्ल्ड where mental wellness is everyone's right. Thank you. Take care. हाँ जी प्रशांत जी। Amazing. Thank you so much, Dr. Alpana, for sharing your wonderful thoughts and wisdom here. So now, friends, we are open for questions, and you can ask your questions if you have any doubt, if you need any clarity. So with this, we have a question from Dr. Samiksha ji. Is counseling like helps in overcoming emotional disturbance due to grief? बिल्कुल समीक्षा जी। ग्रीफ दो तरह का होता है, या तो आपने अपना कोई लव्ड वन खोया, या वो किसी ब्रेकअप के में भी हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। आप अवेयर तो हैं कि आपने किसी को खोया है, बट वो एक्सेप्टेंस आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो बजाय इस ग्रीफ में रहने के कि रोने के, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनकी जो यादें हैं उनको एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। वो मेमोरीज जो हैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया है, इसीलिए वो ग्रीफ भी लॉन्ग टर्म में जा रहा है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिव हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हम भूल गए होते हैं, जब ग्रीफ आता है तो बिल्कुल ही हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो आपकी जो भी हॉबीज़ थी आप उनको दोबारा कर सकते हैं, या नई हॉबी कुछ सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं चाहूँगी कि आप निकले, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन भी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कनेक्शन बनाते हैं तो आप कनेक्ट होने के बाद अपनी हीलिंग की तरफ ही जाते हैं। राइट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। इसी के साथ इन्होंने एक और चीज पूछी है, हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड? देखिए ये ना क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है बहुत बार, कि कुछ क्लाइंट जो है हमारी बातों को पहले दूसरे सेशन में समझना शुरू कर लेते हैं और खुल जाते हैं। जब तक वो ओपन अप नहीं होते हैं तब तक बहुत मुश्किल होता है काउंसिल करना। लेकिन जब अगर एक बार क्लाइंट ओपन हो गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ग्रीफ इतना टाइम नहीं लेता है। वो माइट बी 5-6 सेशंस और 7-8, इन सब में ठीक होने लग जाता है पेशेंट। Awesome. Thank you so much once again. Dr. Samiksha, please let us know if that answers your question. Thank you. So एक क्वेश्चन और आया थी कि like why do most people delay this like seeking help? उनको पता है कि उनको हेल्प चाहिए, बट why do they delay? अभी हम मिथ्स की और फैक्ट्स की बात कर रहे थे ना, तो सबसे ज्यादा वही हो जाता है। उनके दिमाग में ये रहता है, नहीं लोग क्या कहेंगे। अगर किसी को पता चलेगा कि मैं काउंसलिंग के लिए जा रहा हूँ तो लोग तो ये कहेंगे ये तो पागल हो गया है। बिकॉज अभी भी हमारी सोसाइटी इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पा रही है। उनको ये लगता है कि अगर काउंसलिंग के लिए जा रहा है दैट मीन्स उसको कोई मेंटल इलनेस है। वो इन छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस को समझ नहीं पाती है। अवेयरनेस बहुत आई है, बट स्टिल अभी बहुत ज़रूरत है। Yes, thank you. बट अगर इतना है तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स आई शुड आस्क कि व्हाई डू पीपल यूजुअली गेट रॉन्ग अबाउट काउंसलिंग? क्या उनके अंदर ये चीज आती है? काउंसलिंग वो ना अपने डर की वजह से भी नहीं लेना चाहते। बाहर उनको जज किया जाएगा, डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर हमें क्या समझेगा।
और उनको ये लगता है कि काउंसलिंग जो है वो सिर्फ वही बात कि हाँ कि बीमार लोगों के लिए है, ये परेशानी जो आई है चली जाएगी, कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, लिंगर ऑन करते चले जाते हैं। इस वजह से वो जो है काउंसलिंग के ना प्रॉपर वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं कि काउंसलर आपको जज करने के लिए नहीं है, काउंसलर सिर्फ आपकी बातों को सुनेगा। बिकॉज जब हम किसी को सुनते हैं ना, तो आधा तो मैं कहती हूँ वहीं ठीक होने लग जाता है पेशेंट, बिकॉज उसके अंदर के इमोशंस जो हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। और यहाँ तक राइट। पहुंचते पहुंचते भी इसीलिए क्लाइंट डिले कर देते हैं। वो इतना ओवरवेलम होकर आते हैं कि कई बार तो क्या होता है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक पेशेंट थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो इतना ज्यादा ओवरवेलम थे। तो फिर उस सेशन को तो मैं कर ही नहीं सकती, मेरे को चाहिए कि आपको मैं पहले काम करूं, आपकी और मेरी एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो मैच करना शुरू हो। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। सो समीक्षा जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि जिन लोगों के साथ सुसाइडल थॉट्स होते हैं उनके लिए भी काउंसलिंग कैसे हेल्पफुल होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमास होते हैं और कुछ मेंटल इलनेसेस में भी आता है कि पेशेंट को ये सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। तो यहाँ भी काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर हम उनको मेडिसिन प्लस काउंसलिंग के साथ रखते हैं। हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। लाइक आजकल आप देख भी रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू आ रहा है एक एक्ट्रेस का कि अपने बर्थडे पर वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा ही रही थी, और उनके हस्बैंड उनको डॉक्टर के पास लेकर गए और वो कहते हैं कि वंडर किया होम्योपैथी ने मेरे साथ, मैं टोटली चेंज पर्सनैलिटी हूँ। तो कुछ जो इस तरह से एक्सट्रीम वाली कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ मेडिसिन प्लस काउंसलिंग और घर के लोगों का सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे है भी, हाउ डू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर समवन जो कि कभी उसने काउंसलिंग ली ही नहीं है, उससे पहले कभी उसने ऐसा कोई इशू ही फेस नहीं किया, उसे काउंसलिंग के लिए जाना पड़ा? हाँ जी, ऐसे पेशेंट जो बहुत शाई नेचर के होते हैं ना, तो सबसे पहले काउंसलर को अपने क्लाइंट के साथ एक रेपो बनाना पड़ता है कि वही पॉजिटिव वाइब्स मैच करने वाली बात है। तो कई बार वो फर्स्ट सेशन में नहीं होता है, वो सेकंड सेशन में स्टार्ट होता है कि अगर उसको पहले तो हम ही पूछेंगे कि हाँ कि क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, तो वो उसको एक देना पड़ता है कंफर्ट जोन कि जब मेरे पास क्लाइंट आए तो मैं उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करूं, उसको वो महसूस हो उन 30-40 मिनट्स में कि मैं एक बहुत कंफर्ट जोन में आया हूँ, सामने वाला पर्सन मुझे जज नहीं करेगा। तो जब ये स्पेस उनके पास जाता है तो 90% जो क्लाइंट्स होते हैं वो सेकंड सेशन में या फर्स्ट सेशन के एंड तक आते आते, मिड के बाद कभी भी ओपन अप हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ एक्चुअली कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि देयर इज अ क्वेश्चन कि वो कैसे ट्रस्ट करना शुरू करे कि उसको बहुत डीपली हर्ट हुआ है पर्सन, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं ना, वो हर एक रिलेशनशिप पर बहुत बैड एक इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं। पर्सन जो है अप्रोच करना छोड़ देता है किसी को भी, और अगर उसको कोई अप्रोच करता है ना तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मिसट्रस्ट, ये मुझे दोबारा धोखा देगा ही देगा। तो वहां पर हम काउंसलिंग में उनको ट्रोमा से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, उनको छोटे छोटे टूल्स के साथ, यानी कि जैसे सीबीटी की हमने बात करी थी, तो हम उनके नेगेटिव जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लेके बात करते हैं और देन हेल्प करते हैं कि वो अपने पॉजिटिव चेंजेस में लेकर आए। उनको रिलेशनशिप्स के मतलब समझाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे ये होता है कि उनको लगता है कि मेरी ही गलती थी सारी। बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि मेरी ही गलती थी, तो वहां पर उनको ये समझाया जाता है कि नहीं, आपकी गलती नहीं थी। अपने आप को गलत कहना बंद कीजिए। सबसे पहले जब हम अपने आप को सही समझना शुरू करते हैं तब हम ही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सब जो टूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये उनकी हेल्प करते हैं मूव ऑन होने में। नाइस, थैंक यू। अक्सर ये कहा जाता है कि आपको अपना पास्ट हील करने के लिए उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट कि क्या हम बिना पास्ट के बारे में बात किए हील कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत बार क्लाइंट अपना पास्ट बताना नहीं चाहता है,
तो कई बार तो सारा लगता है जी मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। तो ये काउंसलर जो होते हैं तकरीबन समझ जाते हैं कि हाँ कि पेशेंट कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है, बिकॉज हम तो आई टू आई कांटेक्ट में चल रहे हैं आपके साथ। और वो कहते हैं ना कि जहाँ झूठ बोलता है तो आदमी की आंखें बता देती है। तो एक तो ये होता है कि अगर आप कोई बात नहीं, आप अपने फ्रेंड की भी बात करके अपनी बात कर रहे हो तो हम उसको समझते हैं। और कई बार जब पेशेंट अपने बारे में बताना ही नहीं चाहता कि हुआ क्या था, हुआ तो कुछ था लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है, तो हम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस लगा लीजिए, या आप कह दीजिए कि हम पेशेंट्स की जो स्टोरी होती है सब कुछ चेंज करके, बिल्कुल कई बार उनको उस तरीके से या किसी मूवी के साथ हम जोड़कर, तो लाइक एक टूल हम अपना बनाते हैं उस टाइम कस्टमाइज्ड, कि इसके साथ पेशेंट को ऐसे डील करना है। Thank you. Thank you so जी much. So please let us know if that answers your question. And friends, you can ask your questions. We are now reaching to the end of the session. Few minutes are left, so you can ask if you have. अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान को या एक मेल पर्सन को रोना नहीं चाहिए, तो क्या ये सही है? लाइक बीइंग इनटू दिस कल्चर, क्या ये इज इट गुड और इज इट बैड? नहीं, रोना क्यों नहीं चाहिए? इमोशंस के आदमी के होते नहीं है, फीमेल्स के थोड़ा ना इमोशंस होते हैं अकेले, बल्कि मेल्स के बहुत इमोशंस होते हैं। आप ये देखिए कि जब भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो है मेल्स को होते हैं, बिकॉज वो अपना दिल ही नहीं खोल पाते हैं। चोट लगने पे अगर दर्द लड़की को हो रहा है तो लड़के को भी उतना ही होगा ना, लेकिन क्या है, फीडिंग चल रही है बचपन से। अरे तू लड़का है, लड़के रोते थोड़ी ना है। ये वहां से फीडिंग स्टार्ट होते होते जब तक वो बड़े होते हैं उनको ये लगता है नहीं जी मर्द को दर्द नहीं होता है, बट नहीं, मर्द को दर्द होता है और उतना ही दर्द होता है। बल्कि मेरे को कई बार जैसे ड्यूरिंग काउंसलिंग में बहुत ऐसे लोगों से मिली जो बात करते करते रोए हैं। इवन मेरे एक क्लाइंट थे, वो 57 ईयर्स के थे और वो बात करते करते रोए थे कि अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो जहां मुझे ये भी लगता है कि रोना आपके मन को हल्का भी करता है, तो इसलिए मेल हो या फीमेल हो, क्राइंग इज नॉट बैड, आपको वो हल्का ही करेगा। और जब दिल ओके, खोलोगे तभी तो बात बनेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच. So my friend, please let me know if that answers your question again. और अक्सर वो कहते हैं कि वेंट आउट करो, तो क्या उससे हीलिंग हो जाती है या वेंटिंग आउट और हीलिंग में कोई डिफरेंस है? वेंटिंग आउट और हीलिंग में डिफरेंस है। वेंटिंग आउट मीन्स आपने अपने मन का दबा हुआ निकाल दिया, वहां पे आप हल्का होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपने अपनी बातें वैसी कह दी। अब कई क्लाइंट्स, जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि ओपन अप ही नहीं होना चाहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि डू जर्नलिंग। आप लिखिए, जैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं ना उनको वैसे लिखिए। तो वो अगर यहाँ वेंट आउट नहीं हो रहे हैं मेरे सामने, वो घर जाके अपना लिखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ एक रिलीफ सा है। ठीक है, उसके बाद हीलिंग, यानी कि सही तरीके से ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हो आप, वो बहुत इजी हो जाता है। जब वी मेट हम सबने देखी है, उसमें वो कहती है कि यस, लिखो जो तुम्हारे मन में आता है और उसको फ्लश कर दो या जला दो। वहां पर कितनी हीलिंग, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे जब वो ऐसा करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन. तो अक्सर ये एक चीज और है कि मतलब कोई इजीली इसके लिए तैयार नहीं होता, तो उन लोगों के लिए कुछ बताइए जो अपने किसी क्लोज वन को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो मतलब क्या करें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए काउंसलिंग में जाने के लिए, जहाँ पर एक बंदा मतलब ब्रोकन है और वो तैयार ही नहीं हो रहा है कि नहीं, नो वन कैन हेल्प हिम या नो वन सबसे कैन पहले हेल्प तो मी. जी, सबसे पहले तो यही वो हो गया ना कि हम घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं, एक फैमिली हो गई या फ्रेंड हो गई है। तो हमने अभी अपनी स्लाइड्स में साइंस की बात करी थी। अगर वो साइंस, जैसे खाने पीने का पैटर्न चेंज होना या उदास रहना, अगर वो आपको डेली बेसिस पे नजर आ रहा है ना, तो जरूरी है कि फैमिली और फ्रेंड्स वहीं अलर्ट हो जाए और उसको सपोर्ट देना शुरू करें, एम्पैथी के साथ, विदाउट जज किए और रिएक्शन दिए बिना उनको सुनिए आप।
जहाँ आप सुनेंगे ना, वहाँ उनको लगने लगेगा कि नहीं मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, वो अपने आप ही बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छा फिर चलते हैं कहीं, सुनते हैं। और जहाँ पर अगर वो आना नहीं चाहते हैं तो एक और ऑप्शन काउंसलर के पास होता है कि फैमिली आई है या कोई फ्रेंड आया है, तो हम उनको छोटी छोटी टेक्निक्स बताते हैं कि ये टेक्निक्स है, आप उनको बताएं। तो इनडायरेक्ट हीलिंग है, बट चाहिए क्या, इन द एंड ऑफ द डे हीलिंग चाहिए हमें, तो वो हीलिंग स्टार्ट हो सकता है। ओके, गुड, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अक्सर हम कहते हैं कि अगर हमें हील करना है तो हमें माफ करना पड़ेगा, तो क्या हीलिंग बिना फॉरगिवनेस के या माफी के हो सकती है? देखिए, अगर आपके दिल पर बोझ रहेगा तो बहुत या मुश्किल हो जाएगा। अगर कहीं पर आप माफ कर सकते हैं, अगर माफ नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइए उस एपिसोड को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ माफ करना बहुत मुश्किल होता है, तो भूल जाइए, क्योंकि हीलिंग कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो वी कैन से फॉरगिवनेस इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। यस, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट। नाइस, थैंक यू। बिकॉज जब आप फॉरगेट भी करते हो ना किसी चीज को, वो अ सॉर्ट ऑफ फॉरगिवनेस होती है। यस। और अगर कोई आता है और कहता है कि नथिंग कैन चेंज, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसको उसके लिए आप क्या बोलोगे? सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आपने अभी ना डॉक्टर अल्पना सोनी को ट्राई नहीं करा। आइए, बहुत कुछ है। देखिए, वक्त डेली बदलता है। हम कहें 2 अगस्त 2025 ये दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त भी दोबारा नहीं आएगा। आपने बहुत कुछ ट्राई किया है, बट अभी बहुत कुछ बाकी है। इसका मतलब अगर आपका ट्रॉमा हील नहीं हुआ है ना, तो डेट मीन्स बहुत कुछ बाकी है अभी, बहुत कुछ किया जा सकता है। होप, हमेशा एक अच्छी उम्मीद, पॉजिटिव थॉट्स। यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास, फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी यू कैन आस्क। एक है कि अक्सर हम सेल्फ टॉक के बीच में आपने बात की, तो किस तरह की सेल्फ टॉक वो करें ताकि वो उन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से बाहर आना शुरू हो जाए या अपने आप को तैयार कर पाए काउंसलिंग के लिए? सबसे पहले मैं कहूँगी कि सेल्फ टॉक में, जैसा कि जर्नलिंग हमने भी बात करी थी, उससे पहले सेल्फ लव आता है, उससे पहले मी टाइम आता है। सबसे पहले खुद के साथ वक्त बिताना स्टार्ट करो, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिन का स्टार्ट कर सकते हैं या रात के टाइम, आप जो भी टाइम आपके लिए फिजिबल है उस टाइम खुद के साथ वक्त बिताना स्टार्ट कीजिए। जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, और जब आप समझते हैं तो खुद से प्यार करते हैं। तो जब आप प्यार करते हैं तो आपको सेल्फ टॉक जो है ना, वो आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को वहीं पर समझना शुरू कर देगी। आपको पहली स्टेज में पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है, और आप अपनी गड़बड़ समझ लोगे, बिकॉज आप खुद से प्यार करते हो। राइट। तो कोई ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं, कोई एक दो सेंटेंस बता सकते हैं जो सेल्फ टॉक को करें खुद के लिए, अपने आप को पॉजिटिव कमेंट्स किस तरह की दें? देखिए, हम कहते हैं ना कि हम किसी को दे भी सकते हैं, तो वो दे सकते हैं जो हमारे पास है। सबसे पहली बात तो उसमें आया सेल्फ लव। अगर आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो तो आप दूसरे को भी प्यार कभी नहीं दे सकते। सबसे पहले तो यही है कि खुद से प्यार करना सीखिए। सेकंड, अगर कुछ इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मान लीजिए आप स्ट्रेस पे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत सारी हैं। आप उनको बार बार अपने दिमाग में रख नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आजकल की लाइफ इतनी भागदौड़ वाली है, मैं कहूँ कि तुम दिन में अपने 5 बार अपने दिमाग में ये चीज़ें रखो तो पॉसिबल नहीं है। उनके लिए क्या है कि आप अपने घर में जगह जगह पे जहाँ आपकी नज़र पड़ती है ना, वहाँ कुछ पॉजिटिव कोट्स लगा के रखें। लाइक आपका स्टडी टेबल हो गया, या आपके बेडरूम की, आपके बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार हो गई, किचन का काउंटर हो गया जहाँ आप काम करते हैं, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर के बाहर आप लगा के रखिए जहाँ आपकी निगाह पड़ेगी। तो वहां जब आप उनको पढ़ेंगे ना, तो आपका नजरिया चेंज होता है जिंदगी को लेके। तो ये बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना, बात नजर की नहीं, बात नजरिए की होती है। थैंक तो यू। जब आप दिन में 3 बार 4 बार उन चीजों को पढ़ेंगे ना, तो आपके ख्यालात आपके लिए भी बदलेंगे, आपकी सराउंडिंग्स के लिए भी बदलेंगे।
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो आप जैसे काफी पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, आपको लाइक ऐसी क्या चीज है जो आपको होप देती है? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि कई बार जिन लोगों के साथ जो लोग आपके सराउंडिंग्स में रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज को कैच कर लेते हो, तो आप ऐसी कौन सी होप रखते हो कि दैट यू आर स्टिल वर्किंग फॉर देम, फॉर द पीपल हु आर इन पेन? देखिए, अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो हम दूसरे के पेन को ना दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सामने वाले का पेन एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे ना, तो वहाँ हमारी वाइब्स भी जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना ना ओरा पॉजिटिव रखने की बहुत ज़रूरी होती है। आपका काउंसलर बनना आप तब बने हो जब आपके खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट्स होंगे, आप लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचते होगे, तो आप सामने वाले को पॉजिटिविटी दोगे। अदरवाइज आप नहीं दे सकते पॉजिटिविटी। आपकी बातों से ही निकल जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए। आपको पॉजिटिव कैसे रहना है? वही बातें जो मैं कह रही हूँ, मी टाइम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग, अपनी हॉबी। मैं प्रशांत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ कि मॉर्निंग में जब भी मैं उठती हूँ, चाहे वो मैं 8 बजे उठूँ, 6 बजे उठूँ, 10 बजे उठूँ, मेरा जो पहला चाय का कप होता है ना, उस 10 मिनट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो मेरा टाइम है। वो 10 मिनट मुझे सोचना है सिर्फ खुद के लिए। ना तो मुझे मेरे बच्चों के लिए सोचना, ना मैं उस टाइम क्लिनिक के लिए सोचती, ना मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए सोचती हूँ। वो 10 मिनट मैं खुद को देती हूँ सिर्फ। और वो 10 मिनट मुझे सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल ऐसे पावर उस पे रखते हैं। मेरी फुल ऑन एनर्जी रहती है। खुद के लिए करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं ना, तो आपकी पॉजिटिविटी वैसे ही आपके फेस पर आ जाती है। थैंक यू सो मच। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज एनी फाइनल टिप फॉर द पीपल जो ये सेशन देख रहे हैं या जो मैं बाद में देखेंगे, एंड वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एनी फाइनल टिप और मैसेज यू वांट टू गिव? सबसे पहली बात, खुद को समझिए। हम अगर बात करते हैं ना, तो एक 3 A's की बात करते हैं। फर्स्ट इज अवेयरनेस, देन एक्सेप्टेंस, देन एक्ट। सबसे पहले अवेयर होइए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए भी और अपने खुद के लिए भी। देन एक्सेप्ट कीजिए कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, आपको जो मिला है वो क्या है। कोई भी, अगर मैं कहती हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल परेशानी भी है ना, तो सबसे पहले जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, तब आप पैसा कमाने के बारे में सोचना शुरू करोगे। वो एक्ट वहां से स्टार्ट होगा जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लोगे। लाइक अभी एक क्वेश्चन था, ग्रीफ वाला ही था, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द की। जब तक हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने सब व्यूअर्स को यही कहूंगी कि इन 3 A's को माइंड में रखें, awareness, acceptance, and act. Wonderful. So now, friends, we have reached to the end of the session, and honestly, with a powerful conversation, it is Thank really an amazing conversation which has been, yeah. And for this, Dr. Arpana Soni, thank you so much for your time, your wisdom, and your presence. The way you explain emotional disturbances, and with such compassion and clarity, I'm sure कहीं ना कहीं लोगों के हार्ट को इसने टच किया है. And to all of you who joined us today, uh, if you are holding a space, you know, and those who watching the replay, I hope that make sure that you take your notes. You have taken your notes. You paused to reflect and allowed yourself to feel seen. राइट? और जो लोग डॉक्टर अपर्णा से कनेक्ट करना चाहते हैं, once the session will be over, I'll mention her details in the description so you can connect with her directly. And if you want to heal yourself, then I think she is the best. So for wonderful words. At the end, I would only say that healing is not about forgetting what hurt you, but it's about remembering who you are beyond your pain. And once again, Dr. Arpana Soni, thank you so much for being here, for accepting the proposal, coming here and enlightening all of us. थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। मैं एक लास्ट में एक बात और करना चाहूंगी
कि जो भी सुन रहे हैं या इसको बाद में सुनने वाले हैं, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज जरूर याद रखिए, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं है। तो जैसे हैं वैसे ही बने रहें और खुश रहें। Thank you so much. So friends, थैंक यू now सर। we end the session with this, and I'll see you next time with a new speaker and a new topic. Till then, stay healthy, take care. Remember that don't just survive, rise. यस, Stay healthy. गो एंड राइज। Namaste. ओके।